بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ والد مزدوری کے سلسلے میں ایک عرصے سے لیبیا گئے ہوئے تھے۔ میرے علاوہ ایک اور بہن تھی، لیکن کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابو کی شادی ہوئی تو وہ بھی ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کیا کرتے تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں کم تنخواہ کے باوجود گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ معاشی تنگی نے ہمیں گھیر لیا۔ ابو نے ایک چھوٹا سا مکان لے کر ہمیں دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اچھی خاصی رقم بھیجا کرتے تھے، جس سے گھر کا گزارا اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ میں اور میری بہن جوان ہو گئیں۔ اسی دوران والدہ نے بچت سے ایک اچھا سا مکان خرید لیا۔ والد کی کمائی سے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اس خوشحالی نے ہم پر تعلیم کے راستے کھول دیے۔ جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول اسکول کی زندگی سے یکسر بدلا ہوا پایا تھا۔ یہاں کو ایجوکیشن سسٹم تھا۔ پڑھائی سے بیزار عاشق پسند لڑکے اور لڑکیاں عشق و محبت کے چکر میں گم جوڑوں کی شکل میں یونیورسٹی کے لان کونوں کھدروں میں سر چھپائے بیٹھا کرتے۔ اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر مجھے بھی اکثر ہی یہ خیال آتا کہ کوئی لڑکا میرا بھی دوست ہو۔ ایک دن یونیورسٹی میں واجبی شکل و صورت کا ایک لڑکا دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل میں ہلچل پیدا ہونے لگی۔ میں نے اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ میری محبت کے جال میں آسانی سے گرفتار ہو گیا۔ اس نے مجھے صاف صاف بتایا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے دکھ پٹانا چاہتا ہے، اسی لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایک روز وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ ان کا چھوٹا سا مکان تھا جو کچی آبادی میں واقع تھا، لیکن اس کی ماں اور بھائی بہت خوش مزاج تھے۔ بالخصوص اس کی ماں نے میرا والہانہ استقبال کیا۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی خوش ہو گئی تھی کہ سمیر کے گھر والے مجھے کھلے دل سے قبول کرنے کو تیار تھے۔ اسی طرح ہماری محبت چلتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت کا جذبہ جنون میں بدل گیا۔ ہم دونوں بے باکانہ طریقے سے ہر شام کو ملا کرتے تھے۔ اس دوران میں نے اور اس نے امتحانات بھی دے دیے۔ وہ تو اچھے نمبر سے پاس ہو گیا، میں انگلش کے پیپر میں فیل ہو گئی۔ سمیر نے اس کے بعد CSS کا امتحان دے دیا اور ریلوے میں اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہو گیا، لیکن میں بدقسمتی سے دوبارہ انگلش کے پرچے میں فیل ہو گئی۔ سمیر نے بہت زور دیا کہ میں دوبارہ سے پڑھائی کی تیاری کروں، لیکن میرا تو پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ سمیر اب ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا۔ اس کا تبادلہ خانیوال ہو گیا۔ وہاں سرکاری طور پر اسے ایک بنگلہ بھی ملا۔ اس نے خانیوال جانے سے پہلے مجھے اپنے گھر بلا کر امی سے ملوایا۔ اس کی امی نے کہا کہ اب چونکہ سمیر کا روزگار لگ گیا ہے، لہٰذا میں تمہارا ہاتھ مانگنے تمہاری ماں کے پاس آ سکتی ہوں۔ میں نے اپنی امی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک تمہارے ابو سے نہیں پوچھوں گی، ان لوگوں کو رشتے کے لیے نہیں بلا سکتی۔ امی نے میری محبت اور سمیر کے بارے میں ابو کو خط لکھا، جس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں خوب لان تان والا خط بھیجا۔ انہوں نے امی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے شہناز BA نہیں کر سکی اور عشق کے چکر میں پڑ گئی۔ ساتھ ہی ابو نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جلد پاکستان آ کر میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کریں گے۔ تصدیق ایک پرائیویٹ کمپنی میں کلرک تھا۔ اس کی ٹانگ میں معمولی سا لنگ بھی تھا۔ میں نے امی کو سمیر اور تصدیق کے بارے میں بتایا کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امی نے کہا کہ تم صحیح کہتی ہو، لیکن تمہارے ابو کی وجہ سے میں بھی مجبور ہوں۔ سمیر سے میرا ٹیلی فونک رابطہ رہتا تھا۔ وہ مجھے کہتا کہ میری ماں شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہیں۔ ہر ماں کی طرح ان کی بھی خواہش ہے کہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھیں۔ تم بھی کسی طرح اپنے ابو کو منانے کی کوشش کرو۔ بالآخر میں نے ابو کو خود ایک خط لکھا، انہیں سمیر سے اپنی بے پناہ محبت اور تصدیق سے شادی کے بارے میں انکار کر کے بتایا۔ ابو نے انتہائی غضبناک ہو کر خط لکھا کہ اگلے ہفتے وہ پاکستان آ کر یہ قصہ ہی مٹا دیں گے۔ میں نے امی سے کہا کہ میں زہر کھا لوں گی، لیکن کسی بھی صورت تصدیق سے شادی نہیں کروں گی۔ امی نے کہا تم سمیر سے شادی کی ضد چھوڑ دو اور اپنے باپ کی بات مان لو۔ سمیر خود خانیوال سے میرے پاس ملنے آیا، کہنے لگا تم تصدیق سے شادی کر لو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، میں تمہارے لیے ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہو سکتا، میں تمہاری خاطر اپنی جان دے سکتی ہوں اور واقعی میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سمیر کہنے لگا مجھے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یوں وہ مجھے سمجھا بجھا کر بوجھل قدموں سے لوٹ گیا۔ ایک دن ہمارے گھر ابو کے دوست مجھے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنے آئے۔ سچی بات ہے کہ دکھنے میں وہ اتنے برے نہیں تھے۔ بہرحال میرے واویلا کرنے سے یہ رشتہ نہ ہو سکا۔
मैंने चूहे मार गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाही, लेकिन मेरी जान बच गई। इन्हीं दिनों अब्बू की तरफ से खत आना भी बंद हो गए। पता चला कि अब्बू जेल में हैं। अब्बू जेल में कैसे गए थे हमें इसके बारे में कोई इत्तला नहीं थी, क्योंकि अब्बू बड़े ही शरीफुन नफ्स शख्स थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। फिर ये बात समझ से बाहर थी कि वो जेल में कैसे चले गए। हमारे घर में पहले ही मेरी और समीर की मोहब्बत की वजह से तनाव चल रहा था। अम्मी ने मुझे कोसना शुरू कर दिया कि मेरी और समीर की मोहब्बत ने घर में नुहुसत फैला दी है। बहरहाल मुश्किल से हमें पता चला कि किसी पाकिस्तानी फ्रॉडिये ने अब्बू पर झूठा केस डाल दिया है। उन्हें 10 साल की सज़ा हो गई है। एक तो मेरी और समीर के इश्क की खबर बिल्कुल निकल गई, और दूसरा अब्बू के लीबिया में जेल में नज़रबंद होने की वजह से घर में भी बदनामी हो रही थी। इन्हीं दिनों बहन का रिश्ता आया, लेकिन हमारे इन्हीं हालात की वजह से इनकार हो गया। अब्बू की जब से कैद हुई थी, घर के माशी हालात बिगड़ने लगे, यहाँ तक कि हमें खाने के लाले पड़ गए। अब्बू से राब्ता भी खत्म हो गया। एक दिन अम्मी ने मुझे कहा कि तुम समीर से मदद करने का कहो, शायद वो कुछ कर सके। मैंने समीर को तफसीली खत लिखा। खत मिलते ही वो हमारे शहर आ गया। उसे अम्मी ने रो रो कर अपने मसाइल सुनाए। इन्हीं हालात में समीर ने अम्मी से दोबारा मेरा हाथ मांगा। अम्मी अब क्या इनकार करती, इन्होंने मजबूरन इजाज़त दे दी। समीर के साथ मेरा निकाह बड़ी सादगी से हो गया। मैं बगैर किसी जहेज के समीर की दुल्हन बनकर खानीवाल चली गई। इस बात पर खुश थी कि तकदीर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हम दोनों का मिलन हो गया। दूसरी तरफ मुझे अब्बू की बेकसूर कैद होने का भी बड़ा गम था, लेकिन समीर एक अच्छे इंसान थे। वो बहुत ताउन करने वाले थे। उनके घर वाले भी बहुत अच्छे थे। समीर वालिद को लीबिया में जेल से छुड़वाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे। इन्होंने किसी तरीके से राब्ता करके हमारी वालिद से बात भी करवा दी। वहाँ वकील के जरिए उनका मुकदमा लड़वाया और उनकी सज़ा को कम करवाया। समीर की कोशिशों से हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। मुझे भी लगने लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी खुशहाली की जानिब गामज़िन है। शादी को 4 साल हो गए थे। इसी दौरान अल्लाह ने मुझे 2 बेटे भी दे दिए। एक दिन अम्मी ने बताया कि अब्बू लीबिया की जेल से आज़ाद होकर पाकिस्तान आ रहे हैं। ये खबर सुनकर हमारे पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके आने की खुशी में वालिदा ने ये फैसला किया कि हम अपने घर में एक आलीशान जश्न करेंगे और पूरे ख़ानदान को जमा करके दावत ताम की जाएगी। इन्होंने हम दोनों बहनों को घर आने की दावत दी। मैं अब्बू से डर रही थी क्योंकि मैंने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी। अम्मी ने कहा था कि तुम आ जाओ, बाकी मामलात मैं संभाल लूँगी। बहरहाल समीर के समझाने और तसल्ली देने पर मैं भी अब्बू से मिलने चली गई। अब्बू अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बूढ़े और लागल लग रहे थे। इन्होंने शमीम और उसके शौहर के सर पर हाथ फेरा, जबकि मेरी जानिब सलाम का जवाब भी नहीं दिया और मुंह फेर लिया। मुझे एयरपोर्ट पर ही कह दिया कि तू मेरी जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। घर आकर भी वो मुझसे नाराज हो गए। मैं उनके कदमों में बैठ गई, उन्हें वो हालात बताए जिनकी बिना पर अम्मी ने मुझे समीर से शादी की इजाज़त दी थी, लेकिन इन्होंने मेरी एक न सुनी। ये देखकर समीर भी बहुत दुखी हुए और मुझे घर चलने को कहा। मैंने भी यही बेहतर समझा। अब्बू को पाकिस्तान आए हुए 3 माह का अरसा गुजर गया था। मेरा दिल अम्मी अब्बू से मिलने को बेचैन रहता था, जबकि मैंने शमीम की ज़ुबानी ये भी सुना था कि आजकल वालिद की सेहत कुछ ठीक नहीं है। मैं ये खबर सुनकर दौड़ी दौड़ी अपने मैके पहुंची। अम्मी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया, जबकि अब्बू ने अपना मुंह दीवार की जानिब कर लिया। उन्हें मेरी आमद का एहसास हो गया था। मैंने पाँव पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी। इतने में अम्मी भी पास आईं। इन्होंने अब्बू से कहा कि जो होना था हो गया, अब आप शहनाज को माफ़ कर दीजिए। अगर मैं शहनाज की शादी समीर से न करती और इसे उसकी दुल्हन न बनाती तो यकीनन आज भी शहनाज और शमीम हमारी चौखट पर होती। आप लीबिया की जेल में थे तो समीर नहीं अपनी कोशिशों से आपका केस लड़ा और केस लड़के सज़ा कम करवाई। यही नहीं, उसने हमारी माली मुआवनत भी की। अब्बू ये सुनकर अपने बिस्तर से उठ गए। कहने लगे, बेटी तुमने मुझे अपने बचपन के दोस्त से महरूम कर दिया, उसके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इन्होंने मेरे बच्चों को भी सीने से लगा लिया। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में तवील खिज़ां के बाद बाहर का मौसम आया है। शमीम ने अब्बू को मशवरा दिया कि हमें अपने मैके, मेरे और शहनाज के तमाम ससुरालियों की दावत करनी चाहिए। इससे सब लोग खुश हो जाएंगे, समीर का मूड भी अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा, अब्बू आपने अपनी आमद के मौके पर समीर की बहुत तजलील की थी।
हालांकि वो आपकी बहुत इज्जत करता है। अब्बू को अपनी गलती का एहसास हो गया। इन्होंने कहा कि वो बजाते खुद मुझे ससुराल छोड़ने जाएंगे। वहाँ जाकर सबसे पहले समीर और उसकी फैमिली से अपने रवैये की माफ़ी मांगेंगे, फिर उन्हें अपने घर आने की दावत देंगे। अब्बू ने समीर, उसकी माँ और मेरे छोटे देवर के लिए खुसूसी तोहफे और मिठाई ली। जब मैं अब्बू को लेकर अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ समीर और उनका भाई देखकर बहुत हैरान हुए। मेरी सास उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो गया था, वहाँ गई हुई थी। अब्बू ने समीर के शाने पर हाथ रखकर अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांगी। समीर ने अच्छे दामाद की तरह उन्हें खुशदिली से माफ़ कर दिया। थोड़ी देर के बाद समीर ने मुझसे कहा कि मैं अब्बू के लिए बाहर से खाने पीने की अशिया ले आऊं। अब्बू ने कहा कि ये तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मगर समीर फिर भी ना माने। खुशी खुशी बाजार चले गए। अब्बू मेरे घर की आराइश को आंखें फाड़े देख रहे थे। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मोहल्ले से आ गईं। जब मेरे कमरे में आईं, इन्होंने वालिद को देखा तो फौरन चौंक गईं। दूसरी जानिब मेरे अब्बू भी उन्हें देखकर चौंक गए। अख्तरी तुम? अब्बू के मुंह से निकला। सईदुद्दीन तुम? दूसरी तरफ से सास के मुंह से भी ये जुमला निकला। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैंने अब्बू से पूछा। अब्बू अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। बेटी शहनाज, तुम एक लम्हे के लिए बाहर जाओ, अब्बू ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा। उसके बाद मेरी सास ने भी बड़े अफसरदा लहजे में मुझसे कहा, बेटी तुम जरा किचन में जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बना लाओ। मैं अचानक बदलती सूरत हाल के पेशे नज़र बड़ी परेशानी में किचन में पहुंचकर अपनी सास के लिए चाय बनाने लगी। ये अब्बू और मेरी सास के दरमियान बिलाखिर कौन सा रिश्ता है जिसकी बिना पर इन्होंने एक दूसरे को चौंक कर देखा और मुझे खुसूसी तौर पर कमरे से निकाल दिया। इस किस्म के लातादाद सवालात मेरे जहन पर हथौड़े बनकर बरसने लगे। मैंने फटाफट चाय बनाई। जब कमरे में गई तो अब्बू मुझे इंतहाई अफसोस के आलम में अपना दिल पकड़े बैठे नजर आए। मैंने घबरा कर कहा, अब्बू आप इस तरह क्यों बैठे हैं? इन्होंने निहायत पुरतासुफ लहजे में कहा, बेटी काश मैं तुमसे हमेशा नाराज रहता और कभी तुम्हारी ससुराल ना आता। क्यों अब्बू? आखिर आप मुझे बताते नहीं कि क्या बात है? ये शदीद सदमे की हालत में बोले। बेटी शहनाज, लगता है आज मेरी ज़रा सी भूल और जवानी के चंद लम्हात मेरी बकिया ज़िंदगी के लिए तुम्हारी समीर से शादी की शक्ल में मुझे सज़ा दे गए हैं। क्या मतलब अब्बू? मैंने चिल्लाते हुए कहा। बेटी ये समझ लो कि समीर तुम्हारा भाई है। अब्बू ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? अब्बू के मुंह से ये दिलखराश जुमला सुनकर मुझे लग रहा था मेरा दिल फट रहा हो। चंद लम्हों बाद मेरी सास भी बड़ी परेशानी के आलम में कमरे में दाखिल हुई। इन्होंने मेरे अब्बू से कहा, सईदुद्दीन तुम शहनाज से कहो कि वो समीर से तलाक ले ले। तो क्या तुम एक बदकार जानी औरत थी? मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा। अब्बू ने मेरे गालों पर तड़ाक से थप्पड़ मारा। अख्तरी एक मासूम और बेसमझ लड़की थी, मैं ही बदकार था। ये मेरी हवस का निशाना बनी। मुझे मालूम नहीं था कि जिंदगी मुझे इस भयानक मोड़ पर आकर खड़ा कर देगी। तुम मेरी खुशियों की कातिल और मेरी इज्जत के लुटेरे हो। समीर की माँ ने चिल्ला चिल्लाकर जुनूनी अंदाज में वावेला करना शुरू किया। अब मैं चुप नहीं रह सकती। तुम क्या समझते हो, एक गुनाह जो मेरी बेअक्ली की वजह से मेरे ज़मीर पर बोझ बना रहा, दूसरे एक और गुनाह की जंजीर की कड़ी उससे बांध दी जाए? समीर तुम्हारा लहू है और शहनाज भी तुम्हारी बेटी है। रिश्ते के लिहाज से समीर तुम्हारी बेटी का भाई है। बताओ शहनाज किस शरीयत के तहत अपना अज़दवाजी रिश्ता कायम रख सकती है? मेरा तो दिल करता है सईदुद्दीन तुम्हारे चेहरे पर थूक दूं और समीर से धक्के दिलवा कर बाहर निकलवाऊं। खुदा के वास्ते यहाँ से फौरी तौर पर दफा हो जाओ। तुमने आज बरसों बाद मेरे सामने आकर, वो भी शहनाज के बाप के रूप में, मेरे सीने पर छुरी मारी है। इतने में समीर भी वहाँ आ गया। उसे देखकर मेरी सास रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई। समीर हौनकों की तरह मेरी जानिब देखने लगे। ये अम्मी क्यों चिल्ला रही हैं और वो क्यों रोते हुए अपने कमरे में गई? मेरे भी असाब काबू में नहीं रहे थे। मैं उन्हें क्या जवाब देती? अब्बू इंतहाई थके परेशान कुन चाल चलते उठते हुए अपने कमरे से बाहर चले गए। मैंने और समीर ने उनसे पूछा कि आप कहाँ और क्यों जा रहे हैं? हम दोनों ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। क्या हुआ? समीर ने शदीद घबराहट के आलम में मुझसे पूछा। मैं सकते के आलम में बुत बनी खड़ी थी। मैंने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने मुझे बुरी तरह झंझोड़ा। मैं उसे क्या बताती? सिर्फ इतना कहा कि जाओ अपनी माँ से पूछो। मैंने ये जुमला बड़े अफसरदा लहजे में कहा। समीर अपनी माँ के कमरे में गए तो मुझे बाजों से घसीट कर वहाँ ले गए। मेरी सास अपने कमरे में एक कुर्सी पर बड़ी गहरी सोचों में डूबी हुई खामोशी की तस्वीर बनी बैठी थी। ऐसा क्या हुआ
चंद लम्हों में आखिर ऐसा क्या हुआ? समीर की माँ खामोशी से उसे घूरने लगी। माँ, आखिर मुझे बताओ, तुम्हारा शहनाज के अब्बू से क्या रिश्ता था जिसकी बिना पर हमारा घर लम्हों में मातम कदा बन गया? मेरी सास ने रोते झिझकते समीर को सारी बात बता दी। समीर सकते के आलम में बैठे रह गए, फिर कुछ कहे बगैर उठकर बाहर चले गए। दूसरे दिन मुझे इत्तला मिली कि अब्बू ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। उनकी मौत पर ना मैं गई न समीर गया। समीर तो न जाने कहाँ गलियों में घूमता फिर रहा था। समीर ने उसके बाद मुख्तलिफ मुफ्तियों और मौलवियों से फतवा लिया। उसने मुझसे कहा, शहनाज, अब तुम मेरे निकाह में नहीं रही। मैंने मस्जिदों के मौलवियों, माहिरीन, इस्लामी फ़िक़्ह, कानूनी फतवों की न जाने कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए, लेकिन सच्ची बात है ज़्यादातर ने मुझे यही फतवा दिया है कि तुम अपनी बीवी से फौरी तौर पर अपना निकाह साकित करके उससे जुदा हो जाओ। इसकी वजह यह है कि तुम दोनों का बाप एक है। मैंने उससे कहा, देखो समीर, मेरे पास भी एक ऐसे मुफ्ती साहिब का फतवा मौजूद है जिसकी रूह से हम अपना निकाह बरकरार रख सकते हैं। इतने में मेरी सास ने कहा, बेटी, तुम इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर सकती कि तुम्हारी हैसियत एक तरह से समीर की बहन जैसी है और जो तुम जिस मुफ्ती का फतवा अपने हाथों में लेकर फिर रही हो वो हमारे मसलक का नहीं है। मैं अपनी सास और समीर के कदमों में बैठ गई। उनसे रो रो कर इल्तिजाएं की कि खुदा के वास्ते मेरे बाप की सज़ा मुझे मत दें। समीर ने कहा, मुझे गलत मत समझना, तुमने तो मुझसे जुनून की हद तक मोहब्बत की। मैंने भी तुमसे बाखुदा उस वक्त तक जुनून की हद तक मोहब्बत की जब तक तुम मेरी बीवी थी, लेकिन अब मुफ्तियाने इस्लाम के दिए गए फतवों के आगे मजबूर हूँ। मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं तुम्हें अपनी बीवी कहूँ, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरा सर बुरी तरह चकरा गया और मैं धम से फर्श पर गिर गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।